Hello everyone and welcome to part 3 of Interior of Earth, and in this particular part we are going to study emergence of shadow zone and few fringe topics out of the topic which was earthquake. They are left, and we'll complete earthquake chapter in this particular part. So from before starting, I'll just re-explain this concept, or you say let's revise the concept once again. I'll just take 2 minutes. So you see propagation of waves, which means that waves are traveling from or inside the material of earth. And when you zoom in, like when you zoom in the material, you will see that there are small particles. Like I always give you example of chalk, because that is quite relatable, and we've also seen particles of chalks. So you see that chalk, if you have not seen videos of previous chapters, especially minerals and rocks, I'll re-explain it. So whenever your teacher used to write with the help of chalk on blackboard, so you would see some kind of dust which was there, you know which was there in the duster when you use the duster also, and it was also lying here. Okay, it also used to lie here below the board. Below the board you also saw some kind of small particles of chalk. So what does that mean? That means that these small particles, they come together and they form this structure called chalk, right? So we have seen particles of chalk many times in our lifetime. Similarly, the rocks and every matter that is there on our earth, it has some kind of particles. The size may vary, the shape may vary, because shape of the chalk material is round, the chalk particle is round. And here, my friend, we are talking about the material of earth, that is rocks. So these waves travel throughout the earth, and they also travel through the rocks. And here it is, we've not specified any particle or any material that we're talking about. We've just said that let's assume that this is a piece of rock. Let's assume that this is a piece of rock, and from this piece of rock we'll understand the propagation of waves, right? So you can see we have zoomed in this particle, this particular material, to an extent that we can now clearly see its particles, like it's small particles, like the particles of chalks, they are very small. So we have zoomed in this rock, and now we can see these small particles, yeah, small elements, to be very specific, small elements of this rock, right? So NCRT is saying two things. Whenever a wave will pass through this object called rock, so जब वेव पास होगी, इसका मतलब है एक तो इस डायरेक्शन में पी वेव पास होती है, it will do some kind of thing with particles or with elements which are present in the rocks. So it will create a squeeze and stretch kind of situation. I hope that you watched these videos which I told you to watch in last lectures. तो एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हाउ वेव इज़ ट्रैवलिंग, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो ये है दोनों केसेस में. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है बिकॉज यदि हम इधर जा रहे हैं, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, बट वी आर मूविंग फॉरवर्ड, does not mean, it does not matter how we are moving, like this or maybe like this. What matters is direction. So direction of propagation of both these waves is this. And whenever p waves they pass through a material, they travel in this direction, okay, the straight direction. That's why they become parallel. That's why the direction of propagation and how the wave is propagating, these both are parallel. And when we talk of S wave, so it tend to bring up the material, then the material goes down, so crest and trough kind of situation are created. So direction of propagation is this only, but the way of propagation, how the wave is getting propagated,
That is different for both of these, because propagation is this in case of P waves, and way of propagation is like this in case of S waves. So that's why this is the direction of propagation, and when we see this angles become 90-degree right angle or perpendicular, as you like to say. So I think it deserved this explanation, and that's why I explained. Now let's come to today's topic, that is emergence of shadow zone. So in layman term, in everyday term, if I define what is a shadow zone, so you know what is a shadow. Shadow is a place where you cannot see. Whenever you see your shadow, it means the absence of sunlight. Okay, shadow is a place, for example, you see sunlight here, you see sunlight here, and when you see shadow, there is absence of sunlight here. Direct sunlight यहाँ पे नहीं मिलती है shadow area में, right? Sunlight is also, consider sunlight as also a wave. Okay, so where sunlight is not, it is not reaching, that place we call as a shadowed area. Similarly, when earthquake waves are not reaching a particular area, that particular area is said to be a shadow zone, right? It is said to be a shadow zone. And how they are detected? Detected? So scientists have done one thing, that they have put seismographs all over the earth. They've put seismographs all over the earth's surface. All over the earth's surface, because seismographs, we know that they are located on the earth's surface, like this. So this is the position of seismograph on the earth's surface, like everywhere they're located. Okay, and earthquake waves, which are also known as seismic waves, they travel throughout the earth and they can be detected by the seismographs even when they are located at very, देखो अगर मान लो earthquake यहाँ origin हो रहा है, तो अर्थक्वेक के वेव जो है वो हर जगह ट्रैवल करते हैं इन अ वे दैट a seismograph placed here can also detect an earthquake which happened here. Okay, all right. So what is a shadow zone? I told you that it's a specific area where earthquake waves are not reported. We will see that. We know that earthquake waves that we studied are of two types, body waves and surface waves. For shadow zone, we'll only study P wave and S waves. Why? Have you ever wondered why NCERT has only talked about body waves and their shadow zone? It is because the chapter's name is Interior of Earth. And P and S waves, which are two types of body waves, these are two waves. Let me check the mic. Okay. So P and S waves are two kind of body waves, and where do they travel? I've already told you that they travel here inside the crust. And if they travel inside the crust, which means that they are now going to give us some kind of information about the interior of Earth, and that was our sole motto of studying earthquake under this chapter. How do we know about what's there inside Earth? With the help of seismic waves. Alright, so that's why we're only focusing on P and S waves, because they are going to now tell us about the interior of Earth. Okay. For now, you just know that shadow zone is a zone where earthquake waves are not detected. That way, that zone is known as shadow zone. So you know that, just look at it. Okay, this is a shadow zone for one kind of wave, and this is a shadow zone for another kind of wave. Okay. NCERT writes that for each earthquake there is different shadow zone. How do I define or how do I explain this line? उससे पहले, just look at this diagram. So this is a diagram of Earth. I'm trying to show you the exterior, that is the outer crust, and interior of Earth at the same time. I'm trying to show you the exterior and interior of the Earth at the same time.
because I cannot show you these both together because we are now studying in two dimensionals. ठीक है, 2D में हमारी बात हो रही, so I cannot show you these both together. But just look at this image. This is the outer surface of Earth. The map that you can see. This is the outer surface of the Earth. And these lines, these waves, the color, this is inside the Earth. This is inside the Earth. So this map is only the crust. Map crust है और crust के नीचे क्या है? Crust के नीचे देखो, हमने layers पढ़ी थी, तो crust के नीचे क्या है? There is upper mantle, there is core, there is inner core. Okay, so when we also draw this diagram in this way, that यहाँ पे mental, ये mental है और ये core है, ठीक है, sorry, like this is mental और ऐसे कुछ हम core draw कर देते हैं, ठीक है. So like we draw structure of earth ऐसे 2 dimensional में, ऐसे ही मैंने इसको draw किया है. This is the core. This is core and one line you can draw here. This becomes the crust और ये mantle है. इसका मतलब ये जो मैप है इसके नीचे लाई कर रहे हैं ये लेयर्स, इसके नीचे ये लेयर्स लाई कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो हर अर्थक्वेक का डिफरेंट शेडो जोन होने का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर भूकंप का एपिसेंटर जापान में होता है तो शेडो जोन कहाँ में बनेगा? in this region, some parts of Africa here and some part of America, also this Atlantic Ocean. Okay, so this becomes the shadow zone for this particular earthquake. Similarly, when you see now earthquake has come in Chile, when earthquake comes in Chile and we try to draw its shadow zone, this the Asian part, it becomes what? It becomes the shadow zone. Okay, so for the shadow zone, it changes with every earthquake. That's why NCERT has written this small piece of line that for each earthquake there is different shadow zone. I hope you understand. Okay, let's move forward and now let's see. Okay, wait for just 1 minute. I have to do some editing. Okay, let's cut it from here and now let's paste it here. Okay, now it's fine. So we were talking about shadow zones. Seismographs located at any distance from 105 to 105. You see here 105 to 105. So यहाँ पर जितने भी seismographs हमने लगा रखे हैं located at this distances, like this is also the earth, ठीक है. As I told you that we are looking at earth's surface and its inner layers at the same time. पीछे ऐसे, ठीक है. बट नाउ फॉरगेट व्हाट्स लाइक, यहाँ पे कंट्री कॉन्टिनेंट्स नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम क्रस्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ अर्थ. This is the interior of earth. This is the crustal layer, and this is the middle layer, that is mantle, and this is core. And P wave and S waves, they are body waves, and we are seeing that how body wave travels inside the earth, how body waves travel inside the earth. Okay, so seismographs, but obviously seismographs have to be located on the surface of earth. So whenever I'm talking about seismographs, they're not kept inside the earth, because this diagram is about the interior, about the internal structure of earth, does not mean that seismographs are also located inside earth. They are on the surface of earth. All right. So on the surface of earth we have several kind of seismographs. Not kind of, several seismographs are there. So like this. And what we observed in seismographs located from 105 degree, so this epicenter is considered 0 degree for reference. And when we move 105 degree here and 105 degree here, यहाँ तक के seismographs में both P
both P and S waves were detected. Both P and S waves were detected in these seismographs. ठीक है. Then seismographs which are located beyond 145 degrees, like look at this diagram, beyond 145 degrees यानी कि यहाँ पर 145 degrees here, 145 degrees here. So देखो इसको 0 डिग्री माना जाता है, इधर तक you have 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री. This is how on this scale they measure it. So 0, from 0 become 180 here. एपिसेंटर को 0 मान के ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 105 डिग्री वाला जो लोकेशन है वो ये है. और 180 वाला यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है 180 डिग्रीज. ठीक है. तो हाँ, तो जो 145 डिग्री से इधर, 145 डिग्री से इधर, यहाँ पर जो साइज्मोग्राफ्स लोकेटेड हैं, दे ओनली रिकॉर्डेड अराइवल ऑफ पी वेव्स. अराइवल ऑफ पी वेव्स यानी यहाँ पर जो साइज्मोग्राफ्स हैं हमने लगा रखे हैं साइंटिस्ट ने, किसी भी अर्थक्वेक, जैसे एक कोई अर्थक्वेक आया, ठीक है, उस पे उसका जो रिकॉर्डिंग है, देखो पीछे देखो इधर, जैसे कि यहाँ पर पूरा सरफेस पे हमने साइज्मोग्राफ्स लगा रखे हैं. दिस इज़ 105 डिग्रीज, this is 105 degrees, and let's say this is 145 degrees and this is 145 degrees again. And the bhukamp, the earthquake, it has come in Japan. तो जापान का जो भूकंप आया उसका ही एक ही भूकंप का रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हम सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड के साइज्मोग्राफ्स में. और हमने देखा कि 105 से और इधर 105 तक यहाँ के जो साइज्मोग्राफ्स थे उन्होंने रिकॉर्ड किया पी एंड एस वेव्स दोनों को. पर ये जो 145 से 145 डिग्री ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया बचा 145 टू 145, यहाँ पर सिर्फ पी वेव का अराइवल रिकॉर्ड हुआ. यहाँ पर सिर्फ ओनली पी वेव का अराइवल रिकॉर्ड हुआ. यहाँ पर एस वेव की ड्राइंग नहीं बनाई सिस्मोग्राफ ने, यहाँ पर एस वेव की ड्राइंग ही नहीं बनाई सिस्मोग्राफ ने. समझे? तो एक ही भूकंप के बारे में बात हो रही है ये. So seismographs were located beyond 145 degree from the epicenter. They only recorded the arrival of P waves and not S waves. So the zone between 140 इसको छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं, इसको देखते हैं. Entire zone beyond 105. Beyond 105 यानी 105 is there, 105 is this. Let me zoom in. 105 is this, 105 is this. Zone beyond 105, it did not record arrival of S waves. It did not record arrival of S waves. Let's come back to here. For example, earthquake came in Japan. Earthquake came in Japan and this part of North America, South America and some part of Africa. यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ्स लगा रखे थे उन्होंने एस वेव्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया, एस वेव्स की ड्राइंग ही नहीं बनाए. ओके ओके. सो साइज्मोग्राफ्स बियॉन्ड 105 डिड नॉट रिकॉर्ड अराइवल ऑफ एस वेव्स एट ऑल. दे डिड नॉट रिकॉर्ड अराइवल ऑफ एस वेव्स एट ऑल. एंड यू ऑल्सो सी हियर दैट 145 से 145 ही वी आर गेटिंग पी वेव्स. पी वेव्स का जो शेडो जोन है वो ये बन जाता है 105 टू 145, यानी कि साइज्मोग्राफ्स जो यहाँ पे लोकेटेड हैं, यहाँ पर लोकेटेड हैं, दे आर नॉट रिकॉर्डिंग पी वेव्स एज वेल. दे आर नॉट रिकॉर्डिंग पी वेव्स एज वेल. ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस डायग्राम, दिस पर्टिकुलर डायग्राम. यू सी हियर, मान लो ये 145 है, ये 145 है. यहाँ के साइज्मोग्राफ्स में पी वेव्स का अराइवल रिकॉर्ड होगा. बट यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 105 टू 145, 105 इधर भी 105 टू 145, दिस पर्टिकुलर बैंड, दिस इज कॉल्ड अ बैंड. क्या यहाँ पर एस वेव्स का भी अराइवल रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं. क्या यहाँ पर पी वेव्स का भी अराइवल रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं हो रहा. तो
this means that area between 105 and 145 becomes shadow zone for both of these waves. यानी कि यहाँ तक कोई भी वेव नहीं पहुँच पा रही है. So the zone between 105 and 145, it becomes shadow zone for both type of waves. And you see, ये तो दिखाई दे रहा है, the shadow zone of S waves is much larger than ये P wave का तो यही shadow zone है बस. And shadow zone for S waves become much larger. It is approximately 40% of entire Earth surface. Like 40% of entire Earth surface is not experiencing S wave at all. It is not experiencing S wave at all. It is approximately a little more than 40%. NCERT is exactly written a little more than a little over than 40% of Earth's surface is not experiencing S wave at all. Okay. And this is SZ is shadow zones. Shadow zone of P appears as a band. I have already told you that it appears like a band here. Okay. So band, whenever we say band in science, so this is ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है रेक्टेंगल टाइप का, इसको ऐसे भी बना सकते हो. अगर 3D में बात करते हैं तो ये रिंग शेप भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकता है, बट जस्ट रिमेंबर दैट अ बैंड इज फॉर्म्ड हियर. ठीक है, इन केस ऑफ P waves. Now let's see the motive of studying S waves and P waves, which NCERT is not given. कि हमने S waves की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, S waves का जो शेडो जोन है, P waves का जो शेडो जोन है, उससे इंटीरियर ऑफ अर्थ का पता कैसे लगाया. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं और इसको एक एक करके देखेंगे और फिर हम खुद इन्फ्रेंस निकालेंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा हो सकता है. ओके. S waves we know. S waves की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. S wave का एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था. क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था? कि वो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती. S waves travel only through solid. Do you remember them? Do you remember that property? S waves only travel through solids. So you see, अगर S waves, this is core, अगर S waves यहाँ तक नहीं आ रही तो दो चीज़ें हो सकती हैं. वन इज़ डायरेक्शन, अनदर इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि अगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हो सकता है लेट से आ जाए एस वेव, पर हमने देखा कि एस वेव पहुँच ही नहीं रही. यानी कि देखो, वेव्स के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है या वेलोसिटी चेंज हो सकती है. ये भी हमने पढ़ा है. तो एस वेव्स का अगर रिकॉर्ड साइज्मोग्राफ पे नहीं है तो उसकी दो चीज़ें हो सकती हैं कि भैया या तो डायरेक्शन चेंज हुआ होगा या वेलोसिटी चेंज हुआ होगा एस वेव का, इसलिए वो साइज्मोग्राफ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है. तो हमने देखा अगर वेलोसिटी चेंज हुई होती एस वेव्स की तो पहले या बाद में दे मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड. रिकॉर्ड तो होती, पर रिकॉर्ड ही नहीं हुई है एस वेव्स. दूसरी बात, डायरेक्शन का चेंज होना. डायरेक्शन दो टाइप से चेंज हो सकती है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन. अगर डायरेक्शन चेंज होती एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या रिफ्रैक्शन की वजह से जैसे ये वेव है ये इधर जाना चाहती थी इधर, क्या ये इधर रिकॉर्ड नहीं हो जाती, यहाँ के सिज्मोग्राफ्स में रिकॉर्ड नहीं हो जाती एस वेव. अगर रिफ्रैक्शन हुआ होता विच इज़ चेंज ऑफ डायरेक्शन, इधर ऐसे करके कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ होता तो यहाँ पे रिकॉर्ड होते एस वेव्स, पर ये तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं हुए. इसका मतलब है समथिंग इज स्टॉपिंग. इससे पहले रिफ्लेक्शन, आप सोच सकते हो कि यार रिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो अगर रिफ्लेक्शन हुआ होगा तो देखो, अगर रिफ्लेक्शन हुआ होता तो रिफ्लेक्ट होकर, जैसे एस वेव इधर गई है तो रिफ्लेक्ट होके इधर तो आती, रिफ्लेक्ट होके इधर आती. इसका मतलब यहाँ जो साइज्मोग्राफ्स हमने प्लांट कर रखे हैं यहाँ पे एस वेव्स की संख्या ज़्यादा होती. तो क्या वो संख्या ज़्यादा थी रिकॉर्ड से कंपेयर किया? तो नहीं, वो संख्या भी ज़्यादा नहीं थी. तो इसका मतलब ये है दैट समथिंग इज स्टॉपिंग एस वेव्स हियर. जो आउटर कोर है दैट इज स्टॉपिंग एस वेव्स, दैट इज
like this is the outer core, and that is stopping S waves, and it is not allowing S waves to pass through it. It is not allowing S waves to pass through it. फिर हमने देखा कि अच्छा कुछ मीडियम्स ऐसे भी तो हैं जिसमें एस वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, तो हमने देखा एस वेव्स तो भैया सिर्फ सॉलिड्स में ट्रैवल कर सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो आउटर कोर है, कोर को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो आउटर कोर है उसका तो स्टेट लिक्विड है, यानी कि अगर एस वेव्स उसमें से पास नहीं कर रही तो इसका मतलब वो लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। सॉलिड नहीं है और सॉलिड नहीं है तो लिक्विड है, ऐसे आइडिया लगाया साइंटिस्ट्स ने कि आउटर कोर इज़ इन लिक्विड स्टेट, आउटर कोर इज़ इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू हियर। अब पी वेव्स की बात करते हैं। जो पी वेव्स का मैंने आपको बताया था, देखो वेव तो कोई भी हो, अगर एस वेव हो पी वेव हो, उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो सकती हैं, वी नो। पी वेव्स के केस में क्या होता है, पी वेव्स के केस में क्या होता है, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। पी वेव्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती है एज दे मूव फ्रॉम वन काइंड ऑफ मटेरियल टू अनदर काइंड ऑफ मटेरियल। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पी वेव्स की क्या चेंज हो जाती है, दोनों चीज़ें, डायरेक्शन भी और वेलोसिटी भी, डायरेक्शन भी और वेलोसिटी भी। डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज होती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वेलोसिटी किस चीज़ की वजह से चेंज होती है, बिकॉज ऑफ change in density of material, change in density of material. So we noticed that यहाँ पर there is a structure here जो अर्थ के बिल्कुल बीच में present है, and something is there which is deflecting, which is changing the direction of P waves, which is changing the direction of P waves and diverting it from coming here, and all the P waves are coming here. तो मैंने आपको बताया था ये जो waves होती हैं इनकी जो velocity होती है ये कहाँ ज़्यादा होती है बताओ, ये solids में ज़्यादा होती है, ये liquids में कम होती है। इसका मतलब एक तो ये तो density तो change हुई ना, density तो change हुई। Okay, let me re-explain it. I hope that I'm not making खिचड़ी। ये देखो डेंसिटी, देखो डेंसिटी सॉलिड की क्या होती है, हाई होती है। इसका मतलब है ये तो हमें पता है, ये तो हमें एस वेव से पता लग गया कि अगर भैया एस वेव यहाँ तक ट्रैवल कर रही हैं तो ये वाली जो कोर से बाहर वाली जो लेयर है इधर, ये तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है, तभी तो एस वेव्स उसमें ट्रैवल कर पा रही हैं। समथिंग इज स्टॉपिंग एस वेव यहाँ पर, तो इसका मतलब है आउटर कोर बिकम्स लिक्विड। पी वेव का हमें प्रॉपर्टी पता है कि पी वेव्स जो हैं वो लिक्विड में स्लो डाउन हो जाती हैं, वो लिक्विड में स्लो डाउन हो जाती हैं, हमें पता है। और दूसरा हमें ये भी पता है जो पी वेव्स हैं अगर वो सॉलिड से लिक्विड में ट्रैवल करती हैं तो उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। सॉलिड से लिक्विड में ट्रैवल करने से उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। और डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, डायरेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज होती है। रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, ये देखो अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, दिस इज़ वन मीडियम, दिस इज़ अनदर मीडियम, और यहाँ से अगर कोई भी ये आता है, वेव आती है, दिस इज़ नॉर्मल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर, दिस इज़ नॉर्मल, और यहाँ से ये नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे, देखो कोई भी वेव ऐसे आ रही थी और इसको जाना तो ऐसे था, पर वो या तो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, दैट इज़ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ हमने देखा कि पी वेव्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो फिर हमने ये आइडिया लगाया कि इसका मतलब है ये बाहर वाला तो सॉलिड है, यानी कि ये तो डेंस है, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल है जो उनको स्लो डाउन कर रहा है। स्लो डाउन करने का मतलब है जो पी वेव्स की वेलोसिटी है वो स्लो डाउन लिक्विड्स में हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही है तो इसका मतलब है ये लेयर लिक्विड है, ये लेयर लिक्विड है। और दूसरी बात है रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। रिफ्रैक्शन से हमने आइडिया लगाया कि डेंसिटी डिफरेंस होगा, चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, चेंज ऑफ मीडियम, वी आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो इट ऑल्सो मीन्स कि जो साइज्मिक वेव्स का जो रिकॉर्ड है उससे हमने पता लगाया है दैट अर्थ हैज़
अर्थ हैज़ डिफरेंट लेयर्स, अर्थ इज़ लेयर्ड, अर्थ की लेयर्स हैं, अर्थ एक बड़ा पत्थर नहीं है, अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, ओके। एंड वेव्स ऑल्सो चेंजेस स्पीड, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पी वेव्स हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं थोड़ा सा लिक्विड में, और हमने देखा कि पी, देखो इधर जो साइज्मोग्राफ्स थे, इधर रिकॉर्ड हुआ कि जो पी वेव्स की वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज़ डिक्रीजिंग एंड डायरेक्शन इज़ ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन, विच वी कंसिडर्ड कि हाँ यहाँ पे इन लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर ये समझ नहीं आया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट to connect it with the chapter I told you this extra information कि seismic wave से interior of earth का पता लगा कैसे भैया, ये तो हमें पता हो, इसलिए तो हमने earthquake पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर ये झमेला समझ नहीं आया फिर भी ठीक है, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ आउट ऑफ NCERT, आपको सिर्फ उतना याद रखना है जो NCERT में है, बट आई स्टिल मेड यू अंडरस्टैंड दिस. No, I still try to make you understand this. एंड देखो क्रस्ट सॉलिड होती है, फिर आप कहोगे यार मेंटल में तो मैग्मा प्रेजेंट होता है, और मैग्मा हमने देखा है थोड़ा सा लिक्विड होता है, तो यहाँ पे कैसे एस वेव्स ट्रैवल कर पा रही हैं. देखो मैग्मा इज़ नॉट अ ट्रू लिक्विड, मैग्मा इज़ नॉट अ ट्रू लिक्विड, वी कैन नॉट से कि मैग्मा लिक्विड होता है, ठीक है. उसकी डेंसिटी फिर भी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर आके ठंडा होके देखो वो भी पत्थर बना रहा है, तो एक टाइप से वो पिघला, थोड़ा सा पिघला हुआ पत्थर ही है, ठीक है. वी कैन नॉट से दैट मैग्मा इज़ लिक्विड, मैग्मा लिक्विड स्टेट में नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड कुछ ऐसा स्टेट है, ठीक है. ओके, सो ये आउटर कोर हमें पता लगा एस वेव से और पी वेव से. देखो एक तो हमें ये पता लगा कि ये जो मेंटल है इसका मतलब है मेंटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है. और फिर ये पता लगा कि ये जो आउटर कोर है इसकी डेंसिटी कम है भैया, आउटर कोर की डेंसिटी कम है. तो ये यहाँ तक का इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन दैट डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज़ लेस एंड डेंसिटी ऑफ मेंटल इज़ हाई, दिस इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम seismic waves. All right, all right. Now let's see types of earthquakes. One is tectonic earthquake, जो हमने अभी पूरा पढ़ा है, प्लेट्स की वजह से जो earthquake आता है, that is tectonic earthquake. Another one is volcanic earthquake. You know, volcanic earthquake you can also see that you can also say that it is a result of tectonic earthquake. Tectonic earthquake. देखो earthquake क्या है? It is a shaking of earth. It's a shaking of earth. Result में अर्थ शेक होना चाहिए. सो देखो अगर टेक्टोनिक प्लेट मूव करेंगे तो मैग्मा को बाहर आने का रास्ता मिलेगा, और जब मैग्मा बाहर आता है, देखो एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने से भूकंप आएगा पहले तो यहाँ पे टेक्टोनिक अर्थक्वेक आ गया. टेक्टोनिक अर्थक्वेक आने के बाद जब ये मैग्मा बाहर आएगा तो काफ़ी एक्सप्लोजिवली ये बाहर आता है, काफ़ी एक्सप्लोजिवली बाहर आता है, और इसके बाहर आने की वजह से अर्थक्वेक आता है. इसके बाहर आने की वजह से अर्थक्वेक आता है, तो हो गया ना टेक्टोनिक अर्थक्वेक का रिजल्ट क्या हो गया, वोल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है. So it's a special kind of tectonic earthquake only. It's a kind of tectonic earthquake only that is confined to areas of active volcanoes. Active volcanoes ऐसे होते हैं जो frequently erupt करते रहते हैं, जैसे कि मान लो 6 महीने में, 1 साल में, ऐसे कुछ, या महीने में, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हो. So it is confined to the area of active volcanoes, क्योंकि जहाँ पे वोल्केनो फटेगा वहीं तो वोल्केनिक अर्थक्वेक आएगा. It is as simple as that. Collapse earthquake. I told you about mines. You know about mines. Let's see. Let me draw a mine. Oh. Okay. That's fine. Let's say this is a piece of earth surface. Okay, let's say this is a piece of earth surface and here minerals are there. Here there are minerals. Let's say here are gold deposits. Gold deposits के कुछ rocks हैं अर्थ के surface के अंदर. Now human beings try to take this gold out.
एंड लेट्स से इट्स लाइक ऐसे कुछ. And we start mining from here. We usually start mining like from here. हमने ये गोल्ड लिया, we extracted this gold, then we found out कि इस डायरेक्शन में भी गोल्ड है. So we start digging in like this, इधर तक ऐसे. We made a cave like structure to get this gold out. This cave like structure we made to get the gold out like this. So you see, human beings have come till here. यहाँ तक human beings आ गए. Like here workers are working. ठीक है. पर जो ये overlying strata है, this overlying strata, इसका कोलैप्स का भी तो खतरा है. हमने इसको नीचे से इतना खोखला कर दिया है, इतना ऐसे एक टाइप से छत बन गई है, और ये कोलैप्स हो सकता है और कोलैप्स होते भी है. तो ऐसे कोलैप्स की वजह से अगर कोई अर्थक्वेक आता है, जैसे हमने कैविटी काइंड ऑफ क्रिएट कर दिया ना अर्थ के अंदर, दिस इज अ कैविटी दैट इज बीइंग क्रिएटेड, एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन कोलैप्स. दिस इज नोन एज कोलैप्स अर्थक्वेक. This is known as collapse earthquake, and you know that it is due to collapse of roofs. This is roof. This becomes roof, and when it collapses underground in underground mines, that is collapse earthquake. An explosion, like there can be nuclear weapons का अगर explosion हो जाता है तो उसकी वजह से भी earthquake आ सकता है. Then there is reservoir induced earthquake. What is a reservoir? Reservoir is nothing but a natural or artificial large body of stored water. So it's a very large body where much amount of water is stored. And how it can induce earthquake? So by two methods it can trigger earthquake. One is the weight of water. The weight of water, it stresses. Like here is rock. अर्थ के नीचे क्रस्ट तो है ही. क्रस्ट क्या है? रॉक्स ही हैं. और ऊपर क्या है? पानी है. और इतना ज़्यादा वेट का अगर पानी है, सो इट पुट्स स्ट्रेस. और हमने देखा था अर्थक्वेक का स्ट्रेस की वजह से फ्रैक्चर आ जाते हैं. या फिर कोई क्रैक आया है नीचे क्रिस्टल रॉक्स में, अगर ऑलरेडी कोई क्रैक है और ऊपर से पानी प्रेशराइज कर रहा है, तो वो क्रैक फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो सकता है. वो फ्रैक्चर ही तो अर्थक्वेक लाता है. और दूसरी बात कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्चर बन गया है, अब क्या करेगा? वाटर धीरे धीरे उस फ्रैक्चर में घुसने की कोशिश करेगा और रॉक्स को क्या बना देगा? स्लिपरी बना देगा. और अगर रॉक्स स्लिपरी हुए तो इसका मतलब है फ्रिक्शन कम हो जाएगी रॉक्स के बीच में. और आपको पता है कि फ्रिक्शन क्या करती है? वो दोनों रॉक्स को जोड़ने का काम करती है. वो चाहती है कि दोनों रॉक्स साथ रहे. अभी फ्रैक्चर हो गया है तो ये जो दो टुकड़े हैं वो साथ में रहे. पर अगर पानी चला जाता है तो फ्रिक्शन कम हो जाती है और फिर मूवमेंट ऑफ रॉक होने लगता है. उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. नाउ हाउ डू वी मेजर अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक की दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक इंटेंसिटी. मैग्नीट्यूड का मतलब है द एनर्जी दैट वाज रिलीज्ड एट द सोर्स ऑफ अर्थक्वेक. और सोर्स ऑफ अर्थक्वेक क्या है? वो फॉल्ट, वो फ्रैक्चर, या फिर वो फोकस पे जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड. और उसको अगर हम मेजर करते हैं तो उस स्केल का नाम होता है रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल 0 से शुरू होता है और उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है 10. उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है 10. 1 सेकेंड. ओके. सो अगर काफ़ी माइनर अर्थक्वेक है तो उसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा. यानी कि कुछ बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ हुई है फॉल्ट पे या फोकस पे. और अगर मैग्नीट्यूड 8 होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई है. अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स होंगी. और अगर स्ट्रॉन्ग वेव्स होंगी तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होंगी. और जितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होंगी उतनी ही ज़ोर से जो अपना अर्थ है वो शेक करेगा और इतना ही ज़्यादा डैमेज कोज करेगा. ओके. तो एनसीईआरटी लिखती है कि 5 से ज़्यादा अगर वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड की ऑन द स्केल ऑफ रिक्टर तो ये डेवस्टेटिंग हो सकता है. एनसीईआरटी लिखती है. तो ये वैल्यू भी याद रखना कि 5 से ज़्यादा डेवस्टेटिंग या हार्मफुल या हैवॉक क्रिएट करता है.
और इसका 1 से 10 वैल्यू ये भी आपको याद रखना है. दिस कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन कि 0 to 10 रिक्टर स्केल की जो वैल्यू होती है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 10. Now let's come to intensity. What is intensity? You know, intensity is the shaking that is felt at a specific अर्थ के सरफेस पे जो जितना शेकिंग हमको फील होगा, अगर ज़्यादा शेक हो रहा है ग्राउंड तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम शेक हो रहा है तो इंटेंसिटी कम होगी. यही मतलब होता है इंटेंसिटी स्केल, जिसको मरकाली स्केल बोलते हैं. आई होप आई एम नॉट मिस प्रोनाउंसिंग इट, and if I am, then please correct me. So it is named after Mercalli, who is an Italian seismologist. This becomes very important because this is directly picked up from NCERT. You need to remember that Mercalli scale is an intensity scale, Richter scale is a magnitude scale, and it is the intensity, as I told you, that it is the shaking of surface. So when surface shakes, human beings face damage, and if it is about the visible damage caused by the event. Which event? The earthquake event. So intensity is about the visible damage that is caused by the earthquake, and it is range क्या है? It is from 1 to 12. It is from 1 to 12, not 0 to 12. Okay, it's from 1 to 12. Then what are the effects of earthquake? You know, what are the effects? We've seen how earthquake, the earthquake comes. So what after happens? What after earthquakes happen? We know that ground shakes, it is one effect. Another one is differential ground settlement. Differential ground settlement का मतलब है जो ground है वो sink कर जाता है. For example, this is the ground before earthquake. This was the ground before earthquake, and इधर से कुछ ऐसे सिंक हो गए. सिंक का मतलब है नीचे चले जाना. ये ग्राउंड कुछ ऐसा हो गया है. दिस हैज सिंक्ड डाउन ऐसे. ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट. दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट. लैंड एंड मड स्लाइड. लैंडस्लाइड हम वैसे तो लैंड फॉर्म्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे लैंडस्लाइड ऐसे इधर पहाड़ों पे हो जाता है ना लैंडस्लाइड, पूरा कुछ ज़मीन ही नीचे खिसकने लगता है पहाड़ का. जैसे ये पहाड़ है तो कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ज़मीन नीचे आ जाता है. ऐसे ही मड क्या होता है? कीचड़ नीचे आ जाना, मड स्लाइड. ओके, अभी जैसे मैं ये अभी जो लास्ट हुआ था ना अपना लैंडस्लाइड हुए थे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे भी हमने मड स्लाइड्स को देखा था. मड स्लाइड जैसे कि जो होटल्स वाला एरिया, अगर आपने वो वीडियो देखा है, विच इज़ वेरी इट्स वेरी क्या कहूँ, इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी मुझे तो काफ़ी जैसे वी फील वेरी सैड फॉर दोज पीपल. तो वहाँ पर भी मड स्लाइड ही हो रहा था. पहले तो पानी आया, उसके बाद द मड स्लाइडेड ओवर इट. सॉइल लिक्विफैक्शन. सो सॉइल लिक्विफैक्शन इज़ अ फिनोमिना जहाँ पे इंटेंस ग्राउंड शेकिंग होती है. और जैसे कि पानी, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी में पानी का कंटेंट होता है. कोई मिट्टी ऐसी होती है जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप मिट्टी को गीली कर देते हो, उसमें पानी का कंटेंट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. और जब अर्थक्वेक की वजह से वो मिट्टी एक टाइप से फ्लो करने लगे, यानी वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे, काइंड ऑफ लिक्विड की तरह, तो उसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विफैक्शन. और उसकी वजह से क्या हो जाता है? देखो, अगर पानी ज़्यादा है, पानी का कंटेंट मिट्टी में ज़्यादा है, और वैसे ही मिट्टी के ऊपर हमने घर बना रखा है, तो वो घर अभी स्टेबल नहीं रह पाएगा. एक जैसे कि आप किसी चीज़ के ऊपर तैरते हो और या एक सॉलिड चीज़ के ऊपर खड़े रहते हो, तो वो सॉलिड ज़्यादा स्टेबल रहता है. अब जैसे ही वो सॉइल जो लूज़ होगी, जैसे सॉइल लूज़ होने लगेगी, मूव करने लगेगी, तो उसके ऊपर जो घर है वो भी तो मूव करेगा, वो भी तो, उसको भी तो डैमेज हो सकता है. ठीक है, तो उसके ऊपर जो जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी या तो वो सिंक हो सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं. अब ग्राउंड लर्चिंग क्या होता है? ग्राउंड लर्चिंग इज़ नथिंग बट मूवमेंट ऑफ ग्राउंड. ठीक है, उसी को ही थोड़े से ऐसे जार्गन्स में लिखा हुआ है ग्राउंड लर्चिंग. एवेलांचेस भी हो सकते हैं. एवेलांचेस यानी कि इट्स जस्ट अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, या तो स्नो का ऐसे नीचे गिरना, या फिर समटाइम्स रॉक्स एंड सॉइल्स ऑल्सो कम डाउन. दो नॉट ऐसे, जैसे यहाँ पर ये स्नो था एंड ये नीचे आ गया है. सो एवेलांच
भी हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि एवलांच सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। जैसे कि आप फायर देखोगे, फायर अर्थक्वेक की वजह से भी लग सकती है, कोई केमिकल लीक हो सकता है ग्राउंड शेकिंग की वजह से, कोई इलेक्ट्रिकल वायर गिर सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि फायर तभी लगेगी धरती पे जब अर्थक्वेक आएगा। ओके, so avalanche can also be one of the consequence of earthquake, and this is the question from CDS 2 2025। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। तो अगर आपने ये पढ़ा रहेगा, ये अर्थक्वेक वाला, ये वाला दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो आपको पता होगा कि एवलांच एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ी आ रहा है कुछ, या तो ग्रेविटी की वजह से, या तो देखो नीचे से ग्रेविटी अगर पुल करे इसको, या तो इसलिए एवलांच हो सकता है, या तो ग्रेविटी की वजह से होगा या अर्थक्वेक की वजह से होगा। ये एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ी होगा। अब एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर में। पर फिर भी देखो, जो ड्रॉट है, ड्रॉट का मतलब है प्रेसिपिटेशन यानी बारिश कम आना। अब हेल स्टॉर्म, ओले आना जिसको ओले बोलते हैं, और फ्रोस्ट भी, ये सब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। और एवलांच अगर आपने यहाँ पढ़ा था, तो एवलांच एटमॉस्फेयर से रिलेटेड थोड़ी है, एटमॉस्फेयर थोड़ी कुछ कर रहा है। ये तो सिंपल ग्राउंड शेकिंग है, उसकी वजह से ये स्नो या जो भी डेब्री है वो नीचे आ जा रहा है। ओके, सो इफ़ हैड यू रेड दिस you would have solved this question. Now other points are generic, ग्राउंड का डिस्प्लेस हो जाना, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, फायर हो जाता है, या कुछ ऑब्जेक्ट्स दे फेल डाउन। देन कम्स सुनामी। यू नो सुनामी can only occur due to earthquake when the epicenter of earthquake is below oceanic water, like ओशन के नीचे भी तो ये प्रेजेंट होती है क्रस्ट। ओशन के नीचे फॉर एग्जांपल देखो, ये क्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इधर देखो, दिस लाइक दिस इज क्रस्ट, लेट्स से दिस इज द आउटर लेयर, और यहाँ से लेट्स से यहाँ से मैग्मा वाली लेयर दैट इज मेंटल शुरू हो रही है। ओके, सो दिस इज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स जानते हो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? जहाँ पे जैसे हम रहते हैं वो एक यू नो कॉन्टिनेंट्स राइट। तो कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट का थिकनेस है, कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट का थिकनेस है वो ज़्यादा दिख रहा है आपको, और ये जो ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशन है, इधर यहाँ पे पानी भरा है ऐसे, ठीक है। तो कहीं तो ज़मीन होती है ना ओशंस की भी, तो ये ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस कम होती है, इधर देखो, ये ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। ओशन में सुनामी कब आएगी? जब एपी सेंटर इसके नीचे होगा, ओशनिक वाटर से नीचे होगा। एक तो कंडीशन ये है, और दूसरा मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नाउ यू टेक अ बकेट ऑफ वाटर, you try to shake it, what will happen? Water will also vibrate, and some water will also come out. Some water will also come out of bucket, but you are shaking the bucket. You're not trying to, you're not trying to get the water out of the bucket. Similarly, ऐसे ही अर्थक्वेक हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, पानी तो उसके एज अ रिजल्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। So it is because of shaking of earth that tsunami is occurring. Okay, so high magnitude होना चाहिए, यानी कि 6, 7, 8, because when shaking will be strong, उतना ही ज़्यादा strong पानी, उतना ही ज़्यादा strongly पानी बाहर आएगा। एंड इसमें लिखा है ट्रीमर, एनसीईआरटी में लिखा है ओनली व्हेन द एपिसेंटर ऑफ ट्रीमर। ट्रीमर का मतलब क्या होता है? नथिंग बट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब अर्थक्वेक से कुछ रिलेटेड है, यानी अर्थक्वेक को ही बोल रहा है वो ट्रीमर। Now tsunamis are waves generated by the tremors. They are waves generated by tremors and they are not earthquake in itself. यानी वो खुद earthquake नहीं है, they are result of earthquake. Tsunami is a consequence of earthquake and not earthquake is in itself. ठीक है, हमने देखा अगर नीचे earthquake आया, ground shake हुआ, उसके result में पानी बाहर आया, वो खुद earthquake थोड़ी है tsunami. Then frequency of earthquake occurrences. Now what is frequency? Frequency is nothing but a number. It's a number of earthquakes per unit time. For example, I would say that in 1 month, एक महीने में we experienced 10 earthquakes. In 1 month we experienced
10 earthquakes. In 1 year we experience, let's say, 20 earthquakes. So I'm telling you the frequency. I'm telling you the frequency. Or, I can also say that in one day we experienced 3 earthquakes. Okay, so it is like the number of earthquakes, that the number of earthquakes occurring over a period of time. This period of time can be anything. It can be one day, 1 hour, 1 year, or let's say 10 years, whatever you want. Okay. So quakes of high magnitude, अब जो अर्थक्वेक्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, दे हैव लो फ्रिक्वेंसी. लो फ्रिक्वेंसी मतलब वो बहुत कम आते हैं, जैसे साल 2 साल में एक बार आ गए, ऐसे कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में. सो हाई, अभी जैसे रशिया में काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स अभी अभी कुछ महीने पहले रिकॉर्ड किए गए थे. तो क्वेक्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड विच इज़ 8+, they are quite rare, which means that their frequency of occurrence is quite low. बट जो टाइनी टाइप्स के अर्थक्वेक्स होते हैं या छोटे मोटे ट्रीमर्स होते हैं, दे आर हैपनिंग एवरी मिनट एंड यू डू नॉट इवन नो, बिकॉज अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मूव. लाइक अर्थ का जो स्ट्रक्चर वो डायनेमिक है ना, हम टूटी हुई प्लेट्स के ऊपर रह रहे हैं एंड दीज प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग. सो माइनर ट्रीमर्स वेयर वी आर एक्सपीरियंसिंग एवरी मिनट, but we do not know it. So tiny types के earthquake, they are happening every minute. So the frequency of tiny earthquakes is very very high because they are occurring in a great number. They are occurring in a great number. The frequency of high magnitude earthquakes is very low because they are very rare and happens maybe once in a year, or maybe once in 2 years. Okay, so with this we complete our topic of earthquake. Next topic is about structure of earth. Then we have volcanoes. Okay, and after we do volcanoes, this chapter will be complete. Okay, thank you for watching.